جو ہمارے بڑے ہی محترم اور شفیق بزرگ ہیں، جو ہمیشہ بڑے مجرب قسم کے وظائف جو ہیں وہ منیفائز کر کے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ آسانی جو ہے وہ گزر سکیں ہیں۔ جناب آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ایسے ویئرس جو بہت زیادہ بیمار ہیں یا جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، امیگریشن کا مسئلہ ہے، فات و بلیات کا مسئلہ، لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں جو ہے، بے سکونی ہے، یا وہ لوگ جو اسٹون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے کلرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان تمام مسائل کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو استخارہ بھی پرووائڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو وظائف بھی پرووائڈ کریں گے۔ تو کال کیجئے اور اپنا مسئلہ بتائیے اور استفادہ حاصل کیجئے۔ اور ہمارے ایسے ویئرز جن کی کال سم ٹائم نہیں لگتی ہے وہ ہمارے پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں، یہ اس وقت ہمارے ادارے میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام نمبر جو ہیں شاہ جی کے وہ اس وقت ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے اور رابطہ کریے۔ اور ساتھ ہی ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام مشتاق ہے جی، محمد مشتاق۔ محمد مشتاق۔ مشتاق صاحب والد صاحب کا نام بتائیے۔ والد ہے محمد شفیع۔ محمد شفیع۔ اور آپ کی ایج کیا ہے؟ محمد شفیع۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 61 ہے۔ 61 ہے جی۔ کیا پوچھیں گے؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ 61۔ جی ٹھیک ہے۔ کہاں سے کال کیا مشتاق صاحب ہمیں؟ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے بدن میں، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اچھا، آپ نے کہاں سے کال کیا ہمیں؟ مشتاق صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے ہمیں؟ میں لندن سے بول رہا ہوں۔ لندن سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا اپنا؟ وہ سارا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چلیں جناب، بہت شکریہ، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھی، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار کالنگ۔ اللہ حافظ۔ 2 کالز ہمارے پاس آلریڈی ہیں، شائستہ ہمارے ساتھ تھیں اور اس کے علاوہ ابھی مشتاق صاحب کی کال بھی آ چکی ہے۔ اور میں بار بار التجا کرتی ہوں، بڑی ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے ویئر سے کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیا کریں، ٹائم کی آپ اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت مشکل سے آپ لوگوں کی کال ملتی ہے اور پھر جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو مجبوراً آپ کی کال جو ہے ہمیں ڈراپ کرنی پڑتی ہے۔ تو کائنڈلی اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر کے فون پہ بات کیجئے، فون پہ جو ہے آواز سننے کی کوشش کیجئے۔ جی جی، بریک کے دوران ایک کال آئی تھی ہماری شائستہ بہن کی اولاد کے بارے میں، تو ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، ابھی تو آپ سو جائیں وہاں، تو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ وہی بیٹھی رہیں۔ اگر سردی محسوس کریں تو کسی گرم جگہ پہ بیٹھ جائیں اور سورج نکلنے تک آپ پڑھتی رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھتی رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سورج نکلنے تک پڑھیں اور تصور میں یہ رکھیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے بہرمند فرما۔ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی، اور جب خوشخبری ملے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ باقی محمد مشتاق صاحب کی کال تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوں، تو انہوں نے کسی خدشے کا اظہار کیا کہ شاید ان پہ کچھ کر دیا ہوا، لیکن ایسی میرے علم کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنی روٹین بنا لیں، ایک روٹین بنا لیں، یا باعث ہو یا اللہ، یا باعث ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد اگر رہ جائے تو پھر کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی ورد کریں، جو بھی تسبیح کریں، اس میں یقین کا ایلیمنٹ شامل ہونا ضروری ہے۔ یقین، توکل کے ساتھ کہ میرا پیارا رب مجھے سن رہا ہے، وہ سمیع العلیم ہے۔ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سینتم بلا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں اسی آیت الکرسی میں، تمہارے آگے کیا ہے، تمہارے پیچھے کیا ہے، مجھے پتہ ہے، بے شک میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور وہ سمیع العلیم ہے، ہر وقت آپ کی بات سننے کو تیار سن رہے ہیں۔ اور جب یہ آپ پڑھیں گے یا باعث ہو یا اللہ، تو یقین کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئی ہوپ کہ ود ان نیکسٹ کمنگ 2-3 ڈیز آپ بہتر محسوس کریں گے۔ پھر بھی کوئی پرابلم محسوس کریں تو آپ ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ کر لیجیے، جس دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا۔ جی جناب بالکل، جب آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں بڑے ڈیفوشن کے ساتھ، بڑے ٹرسٹ کے ساتھ انہیں جو ہے وہ پڑھا کیجئے تاکہ آپ کی جو ہے مسائل حل ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دوبارہ بولیے، کون پہلے بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ نام بتا دیجئے پلیز۔
वो मेरे को पूछना था बेटी का इस्तेमाल करना बेटी है। का नाम बताइए। साजदा साजदा। और आपका नाम क्या है मदीना जी? मदीना ठीक है। ठीक है। और एज क्या है साजदा की? 29 29 एज है। क्या पूछेंगी साजदा के बारे में? साजिदा के वालिद का। वो उसके रिश्ते के बारे में अच्छा, उसके वालिद साहब का नाम बता दीजिए। साजदा के वालिद साहब का नाम बताइए। याकूब याकूब। जी अच्छा जी, क्या पूछेंगी साजदा के बारे में? उनकी शादी का मसला है? हाँ जी अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। साजदा लंदन से इनके बारे में पूछा गया है, डाटा हमारे पास मौजूद है और शादी के हवाले से इनकी मदर पूछना चाहती हैं। ठीक है। अब आप जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसको तवज्जो सुनिएगा और उस पर अमल भी कीजिएगा। आपने अपनी बेटी से कहना है कि 24 घंटे में किसी भी वक्त एक तस्बीह अपना मामूल बना लें, वो करें या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब। ये अव्वल आखिर दूल्हे पे के साथ तस्बीह की शक्ल में करना है और आखिर में आमीन कहना है। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस काम को ज़्यादा सूरत और तेज़ी से निपटाना चाहती हैं, तो आप भी एक ज़िम्मेदारी ले लें। यानी इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद आप पढ़ें 150 मरतबा या लतीफ़ हो या अल्लाह, या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा अव्वल आखिर दूल्हे पाक के साथ। उन्होंने पढ़ना, आपकी बेटी ने या समीओ या वहाब, आपने पढ़ना है या लतीफ़ हो या अल्लाह। उन्होंने पढ़ना है 100 मरतबा, आपने पढ़ना है 150 मरतबा। उन्होंने किसी उनका टाइम लिमिट कोई नहीं, जब मर्ज़ी पढ़ें। आपने पढ़ना है इशा की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों में अच्छी खबर मिलेगी जी इंशाअल्लाह ताला। जनाब इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल आपको कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपको वज़ाइफ रिकमेंड किए जाते हैं उनको बड़े ट्रस्ट के साथ, बड़े डिवोशन के साथ पढ़िए और इंशाअल्लाह ताला जब आपका काम हो जाता है तब हमें कॉल करके बताइए भी। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल जो है इस वक्त नहीं लग रही, वो हमारे इदारे में रब्ता कर सकते हैं। तमाम नंबर जो हैं इस वक्त टेलीविजन पर डिस्प्ले हैं, काइंडली आप नोट कर लीजिए। नोट करके प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, इस वक्त भी कॉल कर सकते हैं। हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद हैं जो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। अच्छा जी शाह जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दूसरे के मज़ाहब का एहतराम जो है वो हमारे मुआशरे पर किस हद तक पॉजिटिव असरात मुरतब कर सकता है? बहुत ज़्यादा मुरतब कर सकता है। फ़तह मक्का के मौके पे जो हमने मुसलमानों ने और हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात फरमाए, इतना लीनियट एटीट्यूड गैर मुसलमानों के साथ रखा, ये एक तारीख़ है, एक तारीख़ का हिस्सा है और एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। और कुफ़ार ने हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उन्होंने ये हम तफसील से सुनेंगे क्योंकि बड़ा खूबसूरत वाक़या है और आप जब बताएंगे तो डेफिनेटली हमारी इस्लाह होगी। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सदफ बात कर रही हूँ ग्लासगो से। सदफ ग्लासगो से। जी सदफ क्या पूछेंगी? हाँ जी, मैंने पीर साहब से पूछना है कि ये जो इनके नंबर आ रहे हैं ठीक है, पर्सनल, ये एक इनके डीएम की भी आते हैं और एक ये इनके लेकिन नंबर आ रहे हैं, यहाँ तो पर कौन से इनके नंबर पे देखिए, यहाँ उनसे पर राब्ता कर सकते हैं? यहाँ पर जो इस वक्त हमारे टेलीविजन पर इस वीनस के प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रही हैं, इन्हीं नंबरों पर आपकी जो है वो साहबजादा साद अख्तर साहब से बात होगी। जी जी, नहीं जो नीचे नंबर आ रहे हैं जी पर्सनल नंबर। जी, ये मैंने यही नंबर बताया है कि यहाँ पर आप बात कीजिए। यहाँ ये नंबर आप नोट कर लीजिए, प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लीजिए। अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न पर जाते हैं और आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश करते हैं। अगर इनसे बात ना हो तो हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद होते हैं जो इनकी ज़ेर परस्ती काम कर रहे होते हैं। कोई इसमें कबाहत वाली बात नहीं है, आप उनसे बात कर सकती हैं, रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। हाँ जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। जी नाम बता दीजिए भाई का काइंडली। इमरान मलिक। इमरान। इमरान मलिक। जी जी। इमरान मलिक। और उनके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान। और उनकी एज क्या है? 55 होगी। 55 होगी। नहीं 35 ओके ओके। आप ये बता दिए इमरान इस वक्त कहाँ रहाइश पजीर हैं? आपके पास ग्लासगो में या कहीं और? नहीं, दुबई में है। दुबई में। क्या पूछना चाहेंगे इनके बारे में? बस उनका जर्नल इस्ताहारा करवाना चाहती है।
जर्नल थोड़ा लाइफ फिर भी जी फिर भी कारोबार के मुतालिक। अच्छा ठीक है, कारोबार के मुतालिक ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी जनाब आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो है इस्तिखारा मरकज़, ये वीनस चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और इस वक्त रूहानी स्कॉलर जो हैं साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तो आपके तमाम रूहानी मसाइल जो हैं उनका हल जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके जो नीचे नंबर हैं वो इन्हीं के नंबर है, आप उनको नोट कर लीजिए, आप कॉल करके इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। और सम टाइम अगर ये बिजी होते हैं तो इनके ज़ेरे असर बहुत से रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं। आप बिला झिझक फ़ोन कर सकती हैं और रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। जी मैं जवाब तो ऐसे है कि इमरान मलिक साहब उनको एक मैसेज मेरी तरफ से पहुँचाएँ। एक तो वहम का एलिमेंट अपने अंदर से निकालें, जो बायोडाटा आपने प्रोवाइड किया उसके मुताबिक वो वहमी तबीयत के हैं और इतने वहमी है कि अब उन्हें सर दर्द की शिकायत भी रहने लग पड़ी है। बेहतर यह है कि अपने सर दर्द का इलाज जो है किसी अच्छे फिजिशियन से करवाएं और इसकी जो फौरी रेमेडी है कि कलमा तैयबा का विर्द जो है वो बकसरत किया करें, तस्बीह की नहीं जितना पढ़ सकते पढ़ें। इंशाल्लाह पहले ये वाला मसला हल हो, इस कुछ दिनों के बाद आप फिर रब्ता कीजिएगा, फिर मैं आपको कारोबार की बेहतरी के बारे में इनको अलग तस्वीर बताऊंगा, क्योंकि मैं कारोबार की बेहतरी से ज़्यादा उनकी सेहत को कंसिडर कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। बेहतर यह है कि वो वहम का एलिमेंट और सर दर्द और कुछ किस्म के जो उनके साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं पहले वो ठीक हों। उसका हल यह है कि कलमा तैयबा का विर्द बकसरत किया करें। इंशाल्लाह ताला जब उनको सुकून आ जाएगा फिर कारोबार की तरफ भी आएंगे, इंशाल्लाह कारोबार भी बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला जनाब। और एक लाइव कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैंने फोन किया था मदीना। मदीहा मदीहा जी। जी मदीहा कहाँ से बात कर रही हैं? लंदन से। लंदन से बात कर रही हैं जी, क्या पूछेंगी? बेटी है आयशा। आयशा। बेटा उसका नाम उमर है और बेटी है उसका आयशा। और आयशा के वालिद साहब का नाम बता दीजिए। याकूब। याकूब। और आयशा की एज बताइए। 28 और उम्र की एज 29 जी क्या पूछेंगी? उन दोनों का रिश्ते का लिए पूछेंगे। दोनों के रिश्ते के बारे में पूछना था। ये मैं एक मिनट है जी, एक मिनट। आप आयशा और उमर की शादी के बारे में पूछना चाहती हैं? ये इनके बच्चे हैं और इनकी आगे शादी के बारे में पूछना चाहती हैं कि इनकी शादी कब तक हो जाएगी। मतलब एक बेटी है और एक बेटा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अच्छा, कॉल करने का जनाब, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए सादिया बेटी ने बारहा ये बात कही है कि ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है कि कब होगी, ये इल्म कभी हम नहीं कह सकते। हमने पहले भी कहा कि ये इल्म गैब का अल्लाह के पास है। हाँ, कुछ इल्म ऐसे हैं जो मेहनत और रियाजत के साथ हासिल किए जाते हैं, जो हकीकत के कुछ करीब होते हैं। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तवज्जो के बाद हकीकत के कुछ और करीब चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनत की जाए पूरी डिवोशन के साथ, इन हकीकत के इंतहाई करीब चले जाते हैं। लेकिन असल इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। ये कहना गलत है कि कब होगी, कैसे होगी। हाँ, हम सोल्यूशन बता सकते हैं जिससे आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए आप ऐसा किया करें कि दोनों पे ज़िम्मेदारी डालें। आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी न लें, इनसे कहें कि एक तस्बीह किया करें, या फताह हो या अल्लाह। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, या फ़तह समझ लेते हैं, फ़तह नहीं, या फताह हो फे ते अलफ है, या फताह हो या अल्लाह। ये पढ़ा करें एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ और आखिर में आमीन कहें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दोनों की जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, इंशाअल्लाह ताला। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुर्रहमान बोल रहा हूँ फर्स्ट कॉलर साहब का। तो मैंने वो ना आलिम साहब ने मुझे आयत पढ़ने के लिए दूसरों को बोलनी चाहती, या वली थी या बदी। मैं बताता हूँ आपको। ये था या बदियु समावात वल अर्द, 21 मरतबा आपने पढ़ना है आज रात सोने से पहले। तो इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़नी है बावजू होकर, या बदियु समावात वल अर्द। ये पढ़ते पढ़ते उम्मीद है कि वैसे ही आपको नींद आ जाएगी। लेकिन इशा की नमाज़ पढ़नी है, खाना बर वक्त खाना है, ताकि क्योंकि मैं इस थोड़ा सा ये भी बात बता दूँ कि हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, बड़े तफसीली मेरे लेक्चर्स हैं कि हर ख्वाब जो है वो उसको ये नहीं कहना कि ये ख्वाब आया तो ये बड़ा सच्चा होगा। इस पे डिपेंड करता है कि रात को आपने क्या खाया, रात को आप किस हालत में सोए, कितने बजे खाना खाया, इशा की नमाज़ पढ़ी, खाना बर वक्त खा के इशा की नमाज़ पढ़ी और क्या खाना हजम हुआ,
آخر خواب آپ کو کس پہر آیا، پہلے پہر آیا تو سمجھ لیں وہ جو خواب آیا وہ گزر چکا ہوا ہے، وہ گزر چکا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو درمیانی پہر آئے تو سمجھ لیں کہ اس پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو بیسٹ ٹائم جو ہے آپ کو صبح کا وقت، تہجد کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے آئے تو وہ ایکوریٹ ہے، وہ آنے والے وقت کی نشاندہی کرتا ہے. لیکن پھر بھی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے رات کا کھانا بر وقت کھایا ہو اور کسی سے جھگڑا کر کے نہ سوئے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے نہ سوئے ہوں، آپ پرسکون نیند سوئیں. اور یہ یا بدیع السماوات والارض 21 مرتبہ پڑھ کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ کل ہی آپ کو ایک اچھا سا خواب آئے گا. کافی سارے آپ کو ایمبیگوٹیز، ڈاؤٹس وہ کلیئر خود ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب ایسا اور ہے. شکریہ آپ نے دوبارہ کال کی، یہ اچھا کیا. یہ ایک اچھی سوچ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں پڑھنے میں کوئی غلطی کروں، انہوں نے دوبارہ کال کر مجھے مناسب سمجھا کیا. ویل ڈن، تھینک یو. جی جناب بالکل ایسا ہی ہے. اور بڑی خوبصورت سی بات، ایک نیو بات، ایک میری ایک جو اتنا زیادہ نالج ہے اس میں اضافہ ہو گیا کہ کچھ لوگ واقعی خواب کو لے کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آ گیا. ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا، اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حالت میں سوئے، کس طرف منہ کر کے سوئے، آپ نے کیا کھایا اور کس پہر آپ کو خواب آیا، تب جا کے وہ حقیقت کے تھوڑا سا قریب تر ہوتا ہے. اچھا جی، ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مریم بات کر رہی ہوں. مریم، ہسبینڈ کا نام بتائیے کائنڈلی. عاصم نواز. عاصم نواز. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ محمد نواز. محمد نواز. اور ان کی ایج کیا ہے عاصم کی؟ 79. اچھا یہ بتائیے ویزا اس وقت وہ کہاں پر موجود ہے اور کس جگہ کا ویزا جو ہے وہ لگوانا ہے؟ جی پاکستان. UK کا ویزا لگوانا ہے. پاکستان کے کس شہر میں ہیں؟ وہ اوکاڑا میں. اوکاڑا میں ہے. اچھا مجھے نا ان کا نام دوبارہ پلیز. عاصم نواز. عاصم نواز. عاصم نواز. جی ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت شکریہ مریم. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ابھی ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کیلکولیشن کر رہے ہیں. اب تھوڑی ہی دیر میں آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حل جو ہے وہ بھی پرووائڈ کریں گے. جی ہاں جی، یہ پہلی بات تو یہ ہے جو کہ آپ نے سوال نہیں کیا، میں بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ دونوں کا کپل بہت اچھا ہے. آپ انشاءاللہ بڑی اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے اور آپ کی زندگی میں کافی مجھے خوشیاں نظر آتی ہیں. تو اب آپ بھی تسبیح کرے اور وہ بھی کرے. تسبیح ایک ہی ہے، وہ بھی کرے آپ بھی کرے. وہ ہے یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ. وہ آپ تسبیح شکل میں 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی جی انشاءاللہ تعالی. اور جناب ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ برمنگھم سے کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی، آپ کی کال لگ چکی ہے. برمنگھم سے کون بات کر رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت لائن پر؟ جناب کال آپ کی ڈراپ ہو چکی ہے اور ڈونٹ یو وری، دوبارہ کال ملائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال جو ہے وہ مل جائے گی. ابھی پروگرام کا ٹائم ختم ہونے میں کافی ٹائم ہے، آن ایئر بات کر سکتے ہیں براہ راست. اس وقت جو ہے صاحبزادہ سعد اختر صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفاتی ناموں اور قرآنی احادیث کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک لائیو کالر بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ بیٹی کا نام بتائیے. فاطمہ کے والد صاحب کا نام بتائیے. جی فراج الدین. فراج الدین اور سراج الدین؟ سراج الدین. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ایج کیا ہے فاطمہ کی؟ 20 سال. 20 سال. ہمیں کہاں سے کال کی اس وقت آپ نے؟ مانچسٹر سے. ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گی فاطمہ کے بارے میں؟ مجھے ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی.
कब होगी, कहाँ होगी, मतलब आउट ऑफ फैमिली में होगी या फैमिली में होगी, राइट? चलें जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। और अभी साहबजादा साद अख्तर साहब से हम बातचीत कर रहे थे और जो बता रहे थे कि एग्जैक्ट कोई चीज़ बताना जो है वो बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, वही बेहतर जानता है हर हालात को कि क्या आगे है क्या पीछे है, कौन कब कहाँ कहाँ है, इतना बताना नहीं। लेकिन हकीकत के करीब तर इल्म जो रब्बुल इज़्ज़त अता करता है उसमें से हम इतना क्लू ज़रूर दे सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है, वो भी कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए। जी ये इसमें दो पढ़ने के लिए बातें बता रहा हूँ। एक तो हमारी फातिमा बेटी ने पढ़ना है, मैं ये 2-3 मरतबा रिपीट करूँगा ताकि याद हो जाए। फातिमा बेटी पढ़ेगी या हबली ज़ौजन सालिहा, या हबली ज़ौजन सालिहा। फिर सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, बार बार मौका नहीं मिलता। या हबली ज़ौजन सालिहा, ये तो पढ़ना है हमारी बेटी फातिमा ने। जबकि आपने वो पढ़ना है जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, यानी या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद, या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद। इंशाल्लाह जल्दी खबर मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी। जी जनाब, इंशाल्लाह ताला। और आप देख रहे हैं इस्तिखारा, फैमिली भी होगी या बाहर होगी, आई एम सॉरी ये बताना मुश्किल है जो है मुमकिन नहीं है जनाब। आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज़ और ये खूबसूरत सी महफिल आप लोगों के लिए हमने सजाई है। कंटिन्यू रहेंगे, वापस आएंगे और आपके तमाम मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में फराहम करेंगे। टेक अ ब्रेक। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी प्रोग्राम लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाजिर हम लोग हो चुके हैं और हमारे रूहानी स्कॉलर जो हैं दादा मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है वो ऑन एयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि औलाद का ना होना, बीमारी का तूल पकड़ जाना, आफात-ओ-बलियात का घेरा होना, बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करना, बच्चों के बारे में बच्चों का डर के उठ जाना, बच्चों की शादियों के बारे में इस्तिखारा करवाना, या कोई बिजनेस शुरू करने से पहले या कोई लैंड खरीदने से पहले या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आप इस्तिखारा करवा सकते हैं। इस्तिखारा हम आपको करके देते हैं अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए। हमारे प्रोग्राम में हम आपको वज़ाइफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं और हमारे वो लोग जो तफसील से इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, क्योंकि जनरल जो कैलकुलेशन होती है वो पॉसिबल होती है, शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, तो हम जनरल बहुत सी चीज़ें आपको जो है वो बता देते हैं। लेकिन अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं या आपके अपने क्वेश्चन जो हैं वो 1+ हैं, तो हमारे आप इदारे से रब्ता कर सकते हैं। इनके ज़रिए असर तमाम रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, आप कॉल कर सकते हैं। आपके मज़हब के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। जी ब्रेक के दौरान एक कॉल आई थी अब्दुल रज़ाक साहब। जी बिल्कुल, वो अपनी औलाद के बारे में कि औलाद नहीं है उनके यहाँ, तो उसके लिए मैं एक तस्वीर बता रहा हूँ। वो अब्दुल रज़ाक साहब आपने भी करनी है और आपकी ज़ोजा येरी शाजिया उन्होंने भी करनी है। वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या वारिसो या अल्लाह। ये 100 मरतबा तस्बीह की शक्ल में अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप करिएगा। और मैं एडिशनली ये बता दूँ कि आप दोनों अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें, ख़ास तौर पे आपकी जो मिसिस शाजिया हैं उनसे कहें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें ताकि किडनी और स्टमक एरिया जो उनको प्रॉब्लम है वो भी साथ साथ ठीक होती रहे। और उनसे कहें नमक के गरारे भी किया करें ताकि उनका जो गला अक्सर ख़राब रहता है वो भी ठीक हो जाए। और बाकी इंशाल्लाह आप ये पढ़ें, इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी जो आप काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं, अब मिलेगी इंशाल्लाह ताला आपको। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तस्वीर दोनों करें। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। अपना जो आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं उनको आप पढ़ा कीजिए और साथ साथ नमाज पचकाना भी अदा कीजिए। एक लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। साजिदा का जी सब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का एहसान। जी मेरी जी साजिदा क्या पूछेंगी? आपने पहले भी कॉल की। अपने भाई के मतलब पूछना है कि उसकी अभी शादी नहीं हो रही। भाई का नाम बताइए साजिदा। उस्मान गनी। उस्मान गनी। और उनके वालिद साहब का नाम? मलक मोहम्मद रमजान। मलिक मोहम्मद रमजान। और एज क्या है उस्मान गनी की? 25 के करीब होगी, लेकिन वो शादी को मान नहीं रहा। अच्छा, इस वक्त कहाँ रहते हैं उस्मान? कहाँ मुकीम है? पाकिस्तान में। किस शहर में? किस शहर में? सियालकोट में। सियालकोट में वो मुकीम हैं और शादी के बारे में नहीं जानते, बस यही जानना चाहेंगी? जी वो शादी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि वो उसकी शादी होगी और कब तक होगी। चलें जनाब, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी उस्मान गनी के बारे में पूछा जा रहा था कि वे शादी नहीं करना चाहते, तो खैर
सर तो समझ गए होंगे, क्योंकि जब वो हंसते हैं तो मुझे फौरी तौर पे पता चल जाता है कि आगे पीछे क्या है, सारा उसको समझ आ चुका आपने भी होता तो है। बताया ना हमें कितने साल हो गए इकट्ठे प्रोग्राम। बिल्कुल, मैं तो अपने व्यूअर्स को बहुत बताती हूँ, बहुत सालों से जो है वो हमारे जो रूहानी स्कॉलर इस वक्त शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ मैंने प्रोग्राम किया और 1 मिनट में मुझे इनके इशारे का पता चल जाता है। ज़रूर खुशखबरी ज़रूर है, लेकिन मालूम ज़रूर कीजिए कि वजह क्या है, या ये पूछ लीजिए कहाँ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मसला ना हो हाँ, उनके साथ। देखिए उस्मान गनी जो है ना, मैं मानता हूँ कि थोड़े सारे ज़िद्दी हैं, लेकिन थोड़े सारे खुशामद पसंद भी हैं। खुशामद पसंद, खुशामद परस्त होना और पता, खुशामद पसंद होना और बात है। तो आपको मैं एक बात पढ़ने के लिए बड़ा ही मुख्तसर सा पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, जो सियालकोट में उनके साथ रहते हैं वो पढ़े, उनके ऊपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है तवज्जो से सुनिएगा, या बासितो या मुनिम। अगर मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि अगर ये जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम मैं पढ़ने के लिए बताता हूँ, कोई इसमें ग्रामर की ज़ेर ज़बर की गलती हो, खुदा न खास्ता, तो कुरान पाक के पहले सफ़े पे अल्लाह ताला के सिफाती नाम होते हैं, वहाँ देख लीजिए कि या बासितो या मुनिम, सिर्फ 7 मरतबा उन पे पढ़े। फिर ये कुछ दिन ये अमल जारी रखें, उन पे पढ़ते रहें, फिर उनको बड़े प्यार से शादी के लिए कॉल करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला जनाब आपके काम हो जाएंगे। और एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नोटिंगम से बोल रही हूँ, मेरा नाम उज़मा है और मेरा सेहत का मसला है कुछ। अच्छा उज़मा, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। जी मेरे हस्बैंड नहीं है। नाम तो मतलब शादीशुदा हैं आप? जी नहीं। शादी तो वालिद साहब का नाम बता दीजिए उज़मा। जी मोहम्मद जान, वो भी हयात नहीं है मेरे वाले। कोई बात नहीं, नाम बता दीजिए। जी मोहम्मद जान। मोहम्मद जान। और आपकी एज क्या है तकरीबन? जी तकरीबन 60 है मेरी एज। जी कितनी है? 60 से ओवर है। 60 से बस, ठीक है। अच्छा जी ठीक है। सेहत का मामला है, क्या मसला है डॉक्टर को? मुझे दरअसल 2-3 महीने पहले ना बहुत सख्त किस्म का रात को चक्कर आया था, बहुत सख्त किस्म का, कि जैसे मैं जैसे मरने लगी थी ऐसे किस्म का ना, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई। तो उसके बाद से फिर ये है कि मुझे अब मैं होम्योपैथिक इलाज करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर कहते हैं कि मे भी स्कैन करना पड़ेगा ब्रेन का। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं सर नीचे रख के सो नहीं सकती, क्योंकि लेट नहीं सकती। अगर लेटूँ तो फिर वो मुझे कुछ वो स्कैन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सर मैं जब नीचे करती हूँ, लेटना रात को सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलें ठीक है उज़मा, अल्लाह ताला रहम करेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। अपने डॉक्टर के राब्ते में रहिए और हम भी इंशाल्लाह ताला आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे मैंने ये दरख्वास्त करनी है कि कुछ ऐसा बताएं कि मैं सीधा लेट सकूं, सर नीचे तकिए पे रख के ना सीधा लेट सकूं। राइट। जब मैं टर्न करती हूँ, करवट लेती हूँ दाईं या बाईं, फिर भी मुझे बहुत चक्कर आते हैं। चलें ठीक है। दूसरा मैंने मौलाना साहब से यही पूछना था कि मगरिब के बाद मुझे इतना सख्त वो नींद का गलबा, ड्राउजीनेस होता है ना, कि मैं जैसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्सर मेरी इशा की नमाज भी रह जाती है इसी में। तो मुझे इसके लिए बताएं कि मगरिब के बाद से मुझे मतलब जैसे मेरी बस की बात नहीं होती। चल ठीक है जनाब, मैं सो जाती हूँ, मुझे नमाज पढ़नी मेरे लिए इशा की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। चलें जनाब ठीक है उज़मा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। जी उज़मा थी हमारे साथ नॉटिंगहम से और बीमार हैं, वजीफ़ा भी बता दीजिए। लेकिन उज़मा मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, हम आपको वजीफ़ा ज़रूर बताएंगे, लेकिन साथ साथ डॉक्टर के राब्ते में रहिएगा। डॉक्टर ने जो भी आपकी मेडिकेशन जो है वो कंटिन्यू है, उसको आप कंटिन्यू रखिए और साथ साथ हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। जी उस्मा देखिए मेरी बहन, मायूसी, जैसा कि हमारा स्लोगन है कि मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। और बार बार हम कहते हैं ऐसी कोई परेशानी बनी नहीं जिसका अल्लाह ताला ने हल ना रख छोड़ा हो। तो आपने एक तस्बीह करनी है, या बाइस हो या अल्लाह, या बाइस हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करना है। आप बता रही हैं ब्रेन, जबकि महसूस करता हूँ आपकी ये पिंडी से लेकर टखने तक यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप उस तरफ जो मैंने स्पेसिफिक इशारा कर, इसका भी इलाज करवाइए, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होगी। और जब बाइस हो या अल्लाह पढ़ने से, तो कहते हैं ना, मैं मैजिक का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन एक करिश्माती तौर पर इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएगी। और जब आप ठीक हो तो एक हम्बल सी कॉल, प्यार भरी कॉल ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। मैं ना भी हूँ
ये तो सारा दिन यहीं पे होती, इनको किसी प्रोग्राम में बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जनाब आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है बड़ी तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो कॉल कीजिए, अपने तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है वो हासिल कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमारे रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके लिए मिनीफाइज करके बड़े मुजरब किस्म के वज़ाइफ जो है वो लेकर आते हैं, ताकि आपकी भरपूर रहनुमाई हो सके, आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो सकें, और यहाँ बैठने का हमारा मकसद जो है, जो मंशूर है, वो भी पूरा हो सके। प्रोग्राम में भी कॉल कीजिए, और जिन लोगों की कॉल नहीं इस वक्त लग रही, माजरत ख्वाह हैं, प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। इदारे में राब्ता कर लीजिए, हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। अच्छा जी, ऐसा है कि अगर हमारे पास इस वक्त कॉल नहीं है तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल का लॉड होता है। ये प्रोड्यूसर साहब हमारे बहुत सख्त हैं, ये बड़ी मेहरबानी। ज़ाहिर लोग कुछ जिनके मसाइल नहीं होते वो वैसी बात सुनना चाहते हैं, हाँ तो जी, अपनी बिल्कुल। गाइडेंस के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी देर कॉल का सिलसिला रोक दें, ताकि हम जिस टॉपिक को शुरू किया हुआ है हाँ जी, उसको हम उसको भी अंजाम बात तक करें। पहुंचा सकें। जैसे मैंने कहा था कि अस्सलामु अलैकुम, ये हम कम वेश ख़त्म होता चला जा रहा है। बराए मेहरबानी इसको रिवाइव करें, इस पे गौर करें, और अस्सलामु अलैकुम कहना आम करें, और जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना भी आम करें। और जो है मुसाफिया करना, हाथ मिलाना, इससे कीना जाता है, दिलों से कीना खत्म हो जाता है। वो देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब और भी जैसे ही बाहर- हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हमारे लाइव कॉलर हमारे साथ आ जाते हैं। चले, वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। सलामुकुम। मैम अपने बच्चे के लिए कह रही थी कि वजीफा बता, मेरी मदद करे, मैं परेशान हूँ। तो आप बच्चे का नाम बताइए बहन, बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम है आजाद। अजान, आजाद अजहर, अजहर। और अजहर के वालिद साहब का नाम? मकसूद आलम सिद्दीकी। मकसूद अहमद सदीकी। और इनकी एज क्या है अजहर की? जी, 33। कहाँ से कॉल की इस वक्त आपने हमें? लंदन से। लंदन से कॉल की है। जनाब बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर। मसला क्या है इनका? सेहत का? हाँ, सेहत का मसला है। हेलो हेलो। जी, अच्छा आप बता दीजिए कि क्या मसला क्या है, बच्चे के साथ बीमार है? नहीं, मेरे बच्चे का ना डिवोर्स है, मुझे ना लड़की चाहिए, इसके लिए दुआ करानी कि इसके बच्चे का मेरा शादी हो जाए। बच्चे की शादी हो जाए? हाँ हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी, शादी के बारे में पूछा गया है कि इनकी शादी जो है वो नहीं हो रही, और 33 इयर्स जो है वो इनकी एज है। तो इंशाल्लाह हम आपको वजीफ़ा बताएंगे, वो आप वजीफ़ा पढ़िएगा, और साथ साथ नमाज पचकाना भी अदा कीजिएगा, क्योंकि एक मकसद ये भी है कि हम नमाज की तरफ हमारी जो है वो रागबत हो जाए। जी जी हाँ, अजहर साहब के लिए उनकी वालदा बहुत कंसर्न थी शादी के बारे में, तो परेशान होना छोड़ दीजिए। आप उसकी जगह, परेशानी की जगह तस्बीह को एक दें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, या लतीफ़ हो या अल्लाह। अभी इशा की नमाज के बाद 150 मरतबा पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छा मुनासिब रिश्ता भी आ जाएगा, और अजहर साहब राज़ी भी हो जाएंगे, जो बात आपने मुझसे छुपाई है। एनीवे, अजहर साहब की शादी मैं अनकरीब होती हुए देखता हूँ, लेकिन अब ये तस्वीर शामिल करें अपनी ज़िंदगी को, जब तक उसका रिश्ता तय, बल्कि शादी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये तस्वीर जारी रखिए। जी जनाब, और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रही हैं? तैयबा बर्मिंघम से। जी तैयबा, क्या पूछेंगी? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है तैयबा, आप पहले सबसे पहले बताइए, आप मैरिड हैं? तो हस्बैंड का नाम बताइए काइंडली। मजीद। और आपकी एज क्या है? 40+ हैं, और बर्मिंघम से हमें कॉल की है, बीमार है, डॉक्टर के राब्ते में हैं, डॉक्टर से मशवरा किया, चेक करवाया, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, माइग्रेन पेन है। चलें जनाब, तैयबा बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए, इंशाल्लाह ताला हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हमारे रूहानी स्कॉलर जो हैं
وہ ہمیشہ قرآنی آیات کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے حدیث کے مطابق جو ہے وہ آپ کو سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. ان سے باہر ہم لوگ بالکل نہیں جاتے, لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے طبی لحاظ سے آپ کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ کیا بیماری ہے اور کیوں ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, مائگرین کا مسئلہ ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو دعا ضرور بتائیں گے, وظائف سے ضرور بتائیں گے تاکہ آپ کو سکون ملے. جی ہاں طیبہ, بات یہ ہے کہ اب آپ نے آج سے ہی ایک تسبیح شروع کر دینی ہے, یا برو یا عزیز, یا برو یا عزیز 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اگلی تسبیح ہے استغفار کی. استغفار کی تسبیح دیکھیے, میں جب کبھی اپنے ناظرین کو استغفار کی تسبیح بتاتا ہوں تو وہ اس کو بعض اوقات نیگیٹو لے جاتے ہیں کہ ہمیں استغفار کی تسبیح کیوں. حالانکہ یہ استغفار کی تسبیح تمام انبیاء جو آئے انہوں نے استغفار کی تسبیح کی ہے, حالانکہ وہ معصوم تھے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی استغفار کی تسبیح فرماتے تھے. خلفائے راشدین نے کی ہے, وہ اولیاء کرام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لہٰذا استغفار کی تسبیح کے بڑے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. پھر ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ اگلی کال لیں. بہرحال یا برو یا عزیز اور استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ آپ شروع کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو فوری ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی جناب, اور ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی شازیہ, کیا پوچھیں گی؟ میں نے پوچھنا تھا کہ میری شادی سال ہو گئے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ جو ہے 10 سال. 10 سال ہو گئے ہیں. جی اور جی 3-4 دفعہ میں پریگننٹ ہوئی لیکن مسکیریجز ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے کسی سے دعا بھی کروائی ہے, وہ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کا 2-3 ماہ میں کام ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. دعا کر رہے ہیں, پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے. تو میرے ہسبینڈ چاہ رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں تو میرے. اچھا ٹھیک ہے. شازیہ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے پلیز. شاہد احمد. اچھا جی, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38. 38؟ جی 38. اور ہسبینڈ کا بھی ڈیٹا چاہیے سر؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کہاں سے کال کی اس وقت آپ نے ہمیں؟ لندن سے. لندن سے آپ نے ہمیں کال کی ہے. چلیں جناب, بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو چیک کرواتے رہیے, جو آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کی گئی ہیں ان کو بھی کنٹینیو کیجیے, اور ساتھ ساتھ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. آن ایئر اپنا آنسر سنیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی شازیہ بیٹی, بات یہ ہے جو پڑھائی آپ کو کسی بزرگ نے بتائی ہے اس کو تو آپ جاری رکھیے, اس کو آپ وہ تسبیح آپ جاری رکھیں. اور جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا اس پہ مجھے بھی فکر ہوئی ہے, تو لہٰذا اس خدشے کو دبانا زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ دوسری شادی, تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح یا کبیر و یا ودود یا کبیر و یا ودود یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ ضرور کیا کریں. اور جو آپ کے وہاں بزرگ انہوں نے آپ کے لیے دعا اور جو تسبیحات بتائی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ کرتی رہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہو سکے تو آپ پروگرام کے بعد جو نیچے دیے گئے نمبر ہیں ان پر رابطہ بھی کر لیجیے گا. جی جناب, جو نیچے نمبر دیے گئے ہیں ان پر آپ ضرور رابطہ کر لیا کریں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ ذرا کم ہوتا ہے. بعد میں کال کرنے کے لیے 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن ہوتی ہے, ان پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اپنے کسی بھی مقصد کو بیان کر سکتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا سلوشن جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے روحانی اسکالر آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد احمد بول رہا ہوں لندن سے. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد احمد. جی ہاں. محمد احمد لندن سے بات کر رہے ہیں. جی اپنے والد صاحب کا نام بتا دیجئے. بشیر احمد خواجہ. بشیر احمد خواجہ. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میں جولائی میں 51 کا ہو جاؤں گا. 51 کا ہو جاؤں گا. جی ٹھیک ہے. جی کیا پوچھیں گے؟ میں اپنی صحت کے بارے میں ذرا فکر مند رہتا ہوں, میری صحت نہیں. تو ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر, کیا مسئلہ؟ ڈاکٹر تو وہ تو حال چیز مجھے وہ ڈسچارج کیے جا رہے ہیں, لیکن میری جو پرابلم ہے نا مجھے وہ میری وہی کی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے, کیا کوئی پین ہوتی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ پین ہے, وہ کہتے ہیں میری کمر میں گیپ ہے, میرے نی میں تھا, نی میرے اتنے ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, چل نہیں سکتا, اتنی 24 آور. کہاں سے کال کی؟ پین رہتی ہے لندن سے. وہ پین کلر رہتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ آن ایئر جو ہے وہ اس کا آنسر سنیے, اور ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رجوع کیجیے گا.
मोहम्मद अहमद साहब, आपने आज से ही एक तस्बीह शुरू करनी है, या बदियो या अल्लाह, या बदियो या अल्लाह। ये इससे आपको फौरी तौर पे ना रिलीफ तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर आप इसको तस्बीह के अलावा भी पढ़ते रहें तो मज़ीद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। एक अभी कीजिए और उसके बाद आप पढ़ते रहें लगातार, या बदियो या अल्लाह, इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। लेकिन जैसा कि सादिया बेटी ने कहा, डॉक्टर से रब्ता रखिएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी इंशाल्लाह। जी जनाब, बिल्कुल। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जो हैं जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, ये लोग बीमार हैं, जिनके औलाद का मसला, ये इमिग्रेशन का मसला है, ऑन एयर भी बात कर सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती है, हमारे आपकी सहूलत के लिए जो है ये नंबर टीवी पर दिए जाते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर है वो नोट कर लीजिए। और 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, आप किसी भी वक्त कॉल करके इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनका ताल्लुक जो है किसी दूसरे मजहब से है, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके मजहब से रिलेटेड रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद होते हैं, जो आपकी बुक के मुताबिक, आपके मजहब के मुताबिक जो है वो आपकी रहनुमाई करते हैं। जी, अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ भी हम आ जाते हैं, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कहें, क्योंकि जैसे ही अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक लाइव कॉलर हमारे साथ आ जाएंगे। जी नहीं, मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की थी थोड़ी सारी बात कर लेने दें, उम्मीद है कि वो हमारी इज़्ज़त आबरू का ख्याल करेंगे। हाँ जी। मैं कह रहा था कि अस्सलामु अलैकुम को आम करें। मुसाफिया, हमने कई माशरे में कई लोगों को देखा है कि वो हाथ पूरा नहीं मिलाते, चंद उंगलियां आगे करके ना तकब्बर का इजहार करते हैं। और याद रखिए, जो मुतकब्बर शख्स होता है उसकी वो बदकिस्मत है। वो समझता है कि मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हूँ, वो मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान। हालांकि मैं, मेरी निगाहों में वो सबसे बदकिस्मत आदमी। उसकी लॉजिक मैं देता हूँ कि वो मुतकब्बर शख्स जो मगरूर है वो कभी मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि मोमिन जो है सलाम करने में हमेशा पहल करता है, हाथ मिलाता है। मोमिन जो है वो पहले मुसाफिया करता है गर्मजोशी के साथ, और मुसाफिया करने से दिलों से कीना जाता रहता है, गले मिलने से कीना जाता है, तोआइफ के तबादले से प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। ये तीन बातें मैंने अभी की, तीनों बातें काबिल गौर है कि अस्सलामु अलैकुम से माशरे में अमन अमान कायम होता है, हाथ मिलाने से दिलों में कीना जाता रहता है, तोहफा का तबादला करने से आपके प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। इजाफा हो जाता है। अब लाजमी नहीं है कि आप यहाँ से तोहफा उठाएं और वहाँ 50 मील दूर तोहफा देने जाएं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोबाइल आपके पास मौजूद है, तहनीती बात कर सकते हैं, अच्छी बात का तोहफा उन्हें कर बिल्कुल, सकते बेशक बेशक। सुबह जो है इसमें मैंने कई ऐसी अपने प्रोग्राम के दौरान ऐसे रूहानी टिप देता हूँ जो कहता हूँ ये फैज़ आम है, सब पढ़े, बहुत बड़ा तोहफा होता है हमारे व्यूअर्स के लिए। जो सुन रहे हैं वो आगे लोगों तक पहुँचाएं, ये भी एक तोहफा है। बिल्कुल। जैसे किसी को कि जिसकी औलाद तालीम से दूर है, मैं अक्सर एक तस्वीर रिकमेंड करता हूँ, या हकीम हो या बाइस हो, या हकीमों का मतलब हिकमत वाला, या बाइसों का मतलब मुर्दों को जिंदा करने वाला। इंसान के अंदर लाखों करोड़ों सलाहियतें डेड पड़ी होती हैं, डेड पड़ी होती हैं। तो जब बाइसों यानी मुर्दों को जिंदा, वो सलाहियतें दोबारा जिंदा होती हैं, उजागर होती हैं। जब जो बच्चे जो ज़ेरे तालीम होते हैं, या हकीमों या बाइसों की तस्बीह करते हैं, तो उनके अंदर वो सलाहियतें खुल के बाहर आती हैं। तो वो या हकीमों या बाइसों की तस्बीह आप अपने बच्चों को भी करवाएं और आगे भी पहुँचाएँ। ये तोहफा है। ये उस तोहफे से जब ये बताए कि यार तुम ये या हकीम हो या बाइसों अपने बच्चों को करवाओ, तो वो कितना खुश होगा दूसरा आदमी। तो मैं कहता हूँ तोहफों का तबादला ज़रूर किया करे। अगर किसी के पास वसाइल हैं तो फिज़िकली खुशबू का तोहफा दे, गुलदस्ता दे, या उसकी कोई जो भी अपनी हैसियत के हाँ, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी को मालियत का ही तोहफा होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज ही होनी चाहिए कि आप इतना बड़ी चीज लेके, ये भी एक तोहफे की शक्ल में आ जाता है। बिल्कुल आप करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको खैर और बरकत अता करेंगे। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैं एक छोटा सा वाकया, हाँ जी जरूर, प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी शफकत फरमाई हुई है तो मैं एक बात करता हूं। मैं आज से बहर 3 साल पहले एक मोटर मैकेनिक उसके पास गाड़ी लेके गया, तो वो कहता है कि जनाब बात यह है कि ये वाली गाड़ी मैं नहीं ठीक कर सकता। मैं क्या वजह है, तुम तो बड़े अच्छे खासे मसरूफ़ तरीन मैकेनिक थे। कहता अब गाड़ियाँ जो है नई टेक्निक की आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो मैं वो ठीक नहीं कर पाता। मैं पुरानी गाड़ियाँ ठीक करने वाला मैकेनिक था, अब मैं नकम्मा हो गया हूँ, ये नए लड़के जो आगे निकल गए हैं। तो मैंने उससे यही तस्वीर, या हकीम हो या बाइस हो, ये पढ़ने के लिए बताई। अब जब मुझे फिर काम दोबारा 2-3 माह के बाद पढ़ा तो वो इंतहाई मसरूफ़ काम काज, मैंने क्या हो गया, ये रद्दबदल कहाँ से आ गई थी, उसके बाद तब्दीली कहाँ से आ गई। तो कहता है मैं या हकीम हो या बाइस हो लाजमी पढ़ लेता हूँ। अब सारी बातें जो मुझे नहीं समझ आती सब समझ आती हैं। यानी किसी उम्र के किसी हिस्से में आप या हकीम हो या बाइसों की तस्बीह कर सकते हैं।
इससे ये मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं जो इस वक्त माशाल्लाह डॉक्टर और अच्छी जगहों पे चले गए हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें और मुकाम अता करे। अल्लाह ताला इससे दुआ है कि जो सुनने वाले हैं वो भी अपने बच्चों को या हकीमों या बाइसों की तस्वीर बताएं और उनको फोर्सफुली करवाएं और ताकि उनकी सलाहियतें उजागर हो जाएं, उनकी सलाहियतें खुल के सामने आएंगी। मैं तो इंसान के अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि वो इससे का अंदाजा ही नहीं कर काउंटलेस है, बिल्कुल काउंटलेस सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल ही नहीं करते। इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि डेड पड़ी रहती हैं, कहीं को सोने की आदत है, कईयों को वक्त ज़ाया करने की आदत है, कोई बुरी सोसाइटी में पड़े हुए हैं, यानी कि अच्छी सलाहियतें डेड पड़ी हुई हैं। उसके लिए आप या हकीम हो या बाइस हो हिकमत भी और सलाहियतों को ज़िंदा करने के लिए एक जामिया सी दुआ और इंतहाई मुख्तसर सी है। हमने इसको समराइज़ करके इंतहाई मुख्तसर सा रखा हुआ है और 2 या 3 मिनट लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं और इसके अलावा मैं जब हालांकि मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, उसको अब वो माशाल्लाह अपने मुकाम पे है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो वो भी लगी होती है तस्वीर करने। मैं जरूर अल्लाह ताला का नाम तो हर वक्त जरूरी होता है ना, चाहे हम किसी भी मुकाम पे चले जाएं तो जरूरी होता है कि विर्द जो है उसको जरूर हम कंटिन्यू करें। और जनाब अब मेरा ख्याल से अब लाइव कॉलर ले लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? नाम साइमा है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। अम्मी का नाम बताइए। जी उनका नाम कनीज है। कनीज है। और आपके वालिद साहब का नाम? जी अपने वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। उनके मेरी अम्मी के वालिद का नाम? नहीं आप अपने वालिद साहब का नाम बता दीजिए। जी मेरे वालिद का नाम साबिर है। सादिक है। और आपकी मामा की एज क्या है? नहीं साबिक नहीं, साबिर साबिर साबिर। ठीक हो गया जनाब। और एज भी बता दीजिए आपकी मामा की। जी यही कोई 50 के करीब है। अच्छा ठीक है, क्या पूछेंगी? कहाँ से होती हैं वो? जी 1 साल हो गया, उनके जोड़ों में बहुत दर्द है, उनके शोल्डर में। अच्छा ठीक है, कहाँ से कॉल की है आपने हमें? जी मैंने लंदन से कॉल की। लंदन से कॉल की है। मामा बीमार हैं और डॉक्टर को चेकअप करवाया। डॉक्टर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल कराया, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है। नहीं वो नहीं समझ पाएंगे। नहीं पता चल रहा कि क्या। ठीक है। और ये आपकी शोल्डर में बहुत दर्द है, हमारे घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह मैं समझ गया हूं। तो मैं पूछना चाहती थी कि उन पे किसी ने कुछ कराया हुआ है या ऐसे फिजिकल उनको? चले जनाब ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जी, ये देखिए ना, मेरा ख्याल है कि मेरे चेहरे के तासुरात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोई ना कोई मतलब मसला जरूर है। बिल्कुल सीरियस इशू। हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, ये बस हमारा कुछ सिचुएशन अब चेंज होगी। देखिए ये जो आपकी वालदा हैं कनीज़, ये इन पे किसी ने कुछ किया नहीं हुआ, लेकिन बाय बर्थ इनके साथ कुछ मसाइल हैं। बाय बर्थ? ठीक है, ये बाय बर्थ इनके ऊपर कुछ मसाइल हैं। अब मुझे नहीं पता ये कब हुआ, ये है बचपन से कभी चोट कभी जख्म। तो उसके लिए हम आपको हल बताते हैं, वो ये है कि इनसे कहें कि आखिरी तीनों कुल सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास तीनों सूरतें पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और कुरान पाक के 28वें पारे में सूरह हशर है, उसकी आखिरी 3 आयत सुबह और वही आखिरी 3 आयत शाम को, ये बाकायदगी के साथ पढ़ें। और ये मामला इतना आसान नहीं है, इसके असरात मुझे लगता है कि साबिर साहब के उस पर पढ़ रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप तफसीलन किस वक्त बात भी कर लीजिए। अच्छा जी जनाब, बिल्कुल ठीक है, इस पे जरूर कीजिएगा। और मेरा ख्याल है कुछ हार्श हो रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब। हाँ जी, क्योंकि वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक खूबसूरत सी टिप जो है, रूहानी टिप हमें दे दीजिए ताकि मैं प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करूं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के दौरान बात की थी कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह बे इंतहा मसाइल का हल है। रुके हुए काम चल पड़ते हैं, बंद दरवाजे खुल पड़ते हैं, बीमारियां दूर होती हैं और कारोबार में बेहतरी आती है। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मुझसे इस्तग़फ़ार तलब किए। तो आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह अपना मामूल बनाएं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिसका गला बहुत ख़राब रहता हो वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करे, फ़ौरन उसका गला ठीक हो जाएगा। जी जनाब, इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल ली गई है और आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल हमने अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड किया। हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं लग सकी, माज़रत ख़्वाह हैं, हमारे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। टेलीविज़न पर जो है हमारे नंबर डिस्प्ले हैं, नोट कर लीजिए। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, किसी भी वक्त कॉल करके इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।